Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, if you're targeting any regulatory body exam or any banking exam for this year or next year, this series is going to be very, very helpful for you. Now, under this foundation series, we are covering all the components of all the subjects that are pliable for your phase 1 exam. So, don't forget to like the session and don't forget to subscribe if you're here for the first time. And before we begin the session, I would like to inform you about a special sale that we have launched. So guys, in all our courses, we are offering special discounts. Now this is our one-time sale for your banking exam Mahapack course, wherein we are offering 81% discount. And this sale is valid only till tomorrow. Uh, Actually today, 20th of August. And the coupon code is one time 81. And even for our regulatory body courses like RBI Grade B Gold course and Silver course, NABARD Grade A Gold course and Silver course, similarly IFSCA Grade A, PFRDA, SEBI Grade A and IRDAI Grade A, we are offering 78% discount on these courses and the coupon code is capital one time. So the code expires today midnight and आज रात को 12 बजे कोर्स का जो डिस्काउंट है ये आज रात को ख़त्म हो जाएगा. तो प्लीज़ डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास एंड मेक श्योर दैट यू एनरोल योरसेल्फ. सो गाइस, आपको करना क्या है एनरोलमेंट के लिए? आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और आपको अपने ब्राउज़र पे जाके बस टाइप करना है edutap EDUTAP edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज. इसमें पहले बैंकिंग कोर्सेज देख लीजिए. बैंकिंग कोर्सेज में आपको डेमो कोर्स मिलता है 2 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट. फिर ये हमारा कॉम्बो कोर्स है जिसमें आप आरबीआई और बैंक दोनों की तैयारी कर सकते हो. और ये हमारा सिर्फ बैंक एग्ज़ाम्स के लिए है, बैंकिंग एग्ज़ाम महापैक कोर्स. तो इन पे अभी हम 81% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अपने बैंक कोर्स पे और 78% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हम अपने कॉम्बो कोर्स के ऊपर. और सिमिलरली अगर आप हमारे बाकी आरबीआई कोर्सेज और ये सब देखोगे तो इनमें भी आपको वन टाइम के साथ 78% डिस्काउंट ऑफर मिलेगा. So use this coupon code one time and you can avail 78% discount on look the gold course as well. इससे cheap I don't think कि आपको ये मिलने वाला है पूरे साल में guys. So this is I think the most economical प्राइस ऑफ दिस कोर्स, गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स एज वेल. और बाकी कोर्सेज पे भी आपको ऐसे ही मिलेगा. सो मेक योर डिसीजन क्विकली एंड आज रात को 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी. डोंट मिस आउट ऑन दिस. चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, पहले हम उनके मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर. तो पहला क्वेश्चन था एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर. गाइस, वी डोंट से एज सूनर इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन. But here, what do we say? As soon as. So whenever an adjective is preceded and followed by as, it was always kept in its first degree. Just say as long as soon as fast as quickly as, right? So as sooner as नहीं, as soon as होगा. सेकेंड, विच डू यू प्रेफर मोर, मीट और फिश. सुनने में आई थिंक ठीक लग रहा है सेंटेंस, बट याद रखना गाइस, प्रेफर के साथ कभी मोर या मोस्ट यूज नहीं किया जा सकता. प्रेफर का मतलब ही होता है आप किसको ज़्यादा अहमियत देते हो. सो विच डू यू प्रेफर, मीट और फिश. मोर या मोस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते प्रेफर के साथ बिकॉज दिस इज अ पोजिशनल वर्ड. Next guys, some people get used to changes very easily than others do. Some people get used to changes very easily. देखो सेंटेंस अगर very easily तक होता ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता, लेकिन जब उसने आगे दे दिया than others do, that means it's comparison. तो फिर हम very easily नहीं लगाएंगे, फिर हमें comparative degree लगानी पड़ेगी. तो क्या आएगा, more easily than others do. So सेंटेंस क्या होना चाहिए था, some people get used to changes more easily than others do. And fourth, it was difficult to get out because the street was full of people from one end to another. So यहाँ पे गलती क्या थी गाइस, from one end to another नहीं होगा, यहाँ पे होगा one end to the other. क्योंकि another होता है गाइस, देखो वैसा ही एक और. अनदर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ खरीदा, आपको एक और चाहिए तो आपने बोला प्लीज गिव मी अनदर, तो एक और वैसा ही. लेकिन स्ट्रीट के जो एंड होते हैं वो ऐसा ही एक और नहीं होगा. तो वन एंड टू द अदर, कि एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जो स्ट्रीट थी, इट वाज फुल ऑफ पीपल. सो इट वाज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अदर. सो दीज वर योर आंसर्स फॉर योर प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीवियस चैप्टर्स. चलिए, तो आज अपना एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस. आज मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट कराऊंगा एंड देन वी विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो एडवर्ब्स, अगर आपको एडजेक्टिव समझ आ गए ना गाइस, तो एडवर्ब्स कहीं ना कहीं आप
पिक कर जाते हो आराम से, क्योंकि एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर बेसिकली वन एंड द सेम थिंग, बट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको समझ आएगा कि एडजेक्टिव एडवर्ब, जैसे मैंने आपको डे वन पे बताया था कि these words they share their I mean these categories they share their words, मतलब वही वर्ड एडजेक्टिव होता है और वही वर्ड एडवर्ब भी बन जाता है. बट बिफोर गोइंग इनटू ऑल दैट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्ब्स आर. एडवर्ब्स क्या होते हैं गाइस? वो वर्ड्स जो वर्ब्स में क्वालिटी ऐड करते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ब में क्वालिटी ऐड करते हैं. सो वर्ड्स दैट ऐड क्वालिटी इनटू वर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. तो ये इसकी डेफिनेशन है गाइस. सो एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. ये एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, अभी सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कि एडवर्ब का काम क्या होता है, किसी वर्ब में क्वालिटी ऐड करना. ठीक है, जैसे मैंने बोला शी इज वॉकिंग स्लोली. स्लोली हमने यहाँ किसको बोला है गाइस? शी को या उसकी वॉकिंग को? तो वॉकिंग यहाँ पे क्या है? एक्शन वर्ब. तो स्लोली यहाँ पे क्या हुआ? एड वर्ब. तो कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन में क्वालिटी ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एड वर्ब. फॉर एग्जांपल, ही वाज ही वाज ड्राइविंग केयरलेसली. हाँ जी गाइस, केयरलेसली किसको बोला हमने? ड्राइविंग को. ड्राइविंग क्या है? हमारी एक्शन वर्ब. केयरलेसली क्या हो गया हमारा? एड वर्ब. तो कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन वर्ब में क्वालिटी ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एड वर्ब्स. जैसे ही वॉज शाउटिंग लाउडली. लाउडली किसको बोला हमने? शाउटिंग को. शाउटिंग क्या है? एक्शन वर्ब. तो लाउडली क्या हुआ? एडवर्ब. द प्लेयर्स वर परफॉर्मिंग वेल. द प्लेयर्स वर परफॉर्मिंग वेल. वेल किसको बोला हमने यहाँ पे? उनकी परफॉर्मिंग को. परफॉर्मिंग क्या है? एक्शन वर्ब. तो वेल क्या हुआ? एडवर्ब. तो एडवर्ब्स क्या होते हैं गाइस? बेसिकली वर्ड्स दैट ऐड क्वालिटी इनटू एक्शन वर्ब्स. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ना 99% एडवर्ब्स की ट्रिक समझाता हूँ गाइस. अगर आप ये ट्रिक समझ गए उसके बाद आपको एडवर्ब्स को सीखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, सो 99% जो एडवर्ब्स होते हैं वो कैसे बनते हैं समझना गाइस. 99, 99 इट्स अ ह्यूज नंबर. तो अगर आपको यही एक ही उससे समझ आ गया तो इट विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. तो 99% एडवर्ब्स कैसे बनते हैं गाइस? आप एडजेक्टिव में, किसी एडजेक्टिव में आप एल वाई ऐड कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा? एक एडवर्ब बन जाता है. दैट्स अ सिंपल इक्वेशन जो आपको आज के बाद याद रखनी है कि किसी एडजेक्टिव में, नॉट सभी में, बट बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें आप जब एल वाई ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाते हैं? एडवर्ब बन जाते हैं. देखना, स्लोली, स्लोली किससे बना है? स्लो प्लस एल वाई. केयरलेसली, केयरलेसली किससे बना है? केयरलेस प्लस एल वाई. हैप्पी, हैप्पीली. तो एग्जाम्पल देखने का, जैसे मैंने बोला हैप्पी, हैप्पीली. हैप्पी में हमने एल वाई ऐड कर दिया, वो क्या बन गया? एक एडवर्ब बन गया. हैप्पी, हैप्पीली. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इज एन एडजेक्टिव. strongly, strongly is adverb. nice, nicely. rude, rudely. तो rude is an adjective. जैसे मैंने बोला he is a rude person, बट जब मैं उसको एल वाई लगा लेता हूँ तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब. ही वॉज टॉकिंग रूडली. तो 99% एडवर्ब्स जो होते हैं गाइस वो किससे बनते हैं? एडजेक्टिव्स प्लस एल वाई से. सो अगर आपको ये इक्वेशन याद रह गई तो यू विल बी एबल टू पिक आउट कि क्या एडजेक्टिव है और क्या एडवर्ब है, क्योंकि दोनों में सिंपल सा डिफरेंस क्या है? एक एल वाई का. तो ये एल वाई वाली चीज़ आपने याद रखनी है जो आई थिंक हमें ऑलरेडी हमें मालूम भी है कहीं ना कहीं, सबकॉन्शियसली हम यूज़ करते हैं. हम ये नहीं बोलते शी वॉज बिहेविंग या शी वॉज एक्टिंग स्मार्ट. हम क्या बोलते? शी वॉज, चलो यहाँ ऐसे हम बोलते हैं शी वॉज सिटिंग क्वाइट. हम क्या बोलते हैं? शी वॉज सिटिंग क्वाइटली. हम ये नहीं बोलते ही वॉज ड्राइविंग रैश. हम क्या बोलते हैं? ही वॉज ड्राइविंग रैशली. तो रैश एडजेक्टिव होता है, जैसे ही इज़ अ रैश ड्राइवर, बट ही वॉज ड्राइविंग रैशली. ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन and he always acts strongly. She is a rude lady. She always speaks rudely. ठीक है, happy, happily. Sad, sadly. Right? तो easy, easily. Um, random, randomly. Occasional, occasionally. Beautiful, beautifully.
राइट। तो ये सारे क्या हैं आपके एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब्स के एग्जाम्पल। तो 99% जो एडवर्ब्स होते हैं ना गाइस, वो आपके एडजेक्टिव प्लस एल वाई से बनते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अगर ये फॉर्मूला याद रह गया, आप 99% एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। बट ये था गाइस 99% का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन मैंने 99% क्यों बोला, क्योंकि अब इसके बाद आपकी जो 1% है वो एक्सेप्शंस हैं। और वो एक्सेप्शंस हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब वो एक्सेप्शंस हमें अच्छे से प्रिपेयर करनी है आप। तो लेकिन वो 1% पर जाने से पहले हमें 99% आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी 1% एक्सेप्शंस कौन सी हैं आप देखना गाइस। मैंने बोला बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने पीछे एलवाई लगा के क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे हैप्पी हैप्पीली, सैड सैडली, नाइस नाइसली, रूड रूडली, इजी इजीली, राइट, क्विक क्विकली, स्लो स्लोली। तो ये क्या है, सारे आपके 99%। लेकिन जैसे गुड, अब गुड का एडवर्ब क्या बनेगा गाइस, गुडली। नहीं सर, गुडली तो कोई वर्ड नहीं सुना हमने, राइट। अब गुड का एडवर्ब क्या होगा वो चैप्टर में समझेंगे। फास्ट का एडवर्ब क्या होगा, फास्टली। फास्टली इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। अब ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अभी हमने सीखनी है। मैंने कहा ना 99% अगर यहाँ से सीख गए तो फिर 1% सीखना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब चलते हैं हम अपने 1% की तरफ, एक्सेप्शंस की तरफ। बट वो सीखने से पहले हमें समझना है कि एडवर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी तरह के एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, ताकि आप उनको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पाओ, क्लासीफाई कर पाओ। चलिए, तो अब सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ एडवर्ब। कितनी तरह के एडवर्ब्स हैं, मतलब बेसिकली 8 तरह के हैं। लेकिन इसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हैं आपके फर्स्ट 4, ठीक है। ये पहले 4 ध्यान से समझना, बाकी आप अपने आराम से, आई थिंक 7 ही है, 8 भी नहीं है। हाँ जी। तो ये नंबरिंग गलत हो गया, तो पहले 4 ध्यान से समझना, बाकी आपको अपने आप याद रह जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब देखो सबके नाम में ही उनका मतलब है, तो आपको कुछ अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, अपने खुद ही बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब वो एडवर्ब जो सेंटेंस में टाइम बताने के लिए यूज होते हैं, समय का बोध कराते हैं कि कोई एक्शन टाइम की, किस टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। जैसे बिफोर, जैसे मैं बोलता हूँ आई अराइव बिफोर 10 o'clock, तो यहाँ बिफोर किसके लिए लगा है, आई के लिए या अराइविंग के लिए, कि मैं 10 बजे से पहले आ गया था। लेकिन बिफोर में तो कोई एलवाई तो नहीं लगा हुआ। मैंने बोला ना वो भी करेंगे हम जिनमें जो एलवाई वाले नहीं होते। तो आपको समझना है, अभी इनको रटना नहीं है कि बिल्कुल ही एक ही शॉर्टकट से पूरा चैप्टर नहीं खत्म होगा, थोड़े से एक्सेप्शन देखने पड़ेंगे आपको। तो जैसे आई केम हेयर बिफोर 10 o'clock, तो बिफोर यहाँ किसके लिए लग रहा है, टाइम बताने के लिए, 10 बजे से पहले। लेकिन 10 बजे से पहले क्या, आ गया था, आना। सो अराइविंग के लिए बोल रहे हैं, तो अराइविंग वर्ब है, तो बिफोर क्या हुआ, एडवर्ब। लेकिन कैसा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे मैं बोलता हूँ आई मेट हिम 2 months अगो, तो यहाँ पे 2 महीने पहले क्या है, आई मेट हिम 2 months अगो। अगो किसके लिए बोल रहे हैं हम, 2 महीने पहले मिलने के लिए, ठीक है। ही वॉज हेयर 10 minutes अगो, तो यहाँ पे हम इसको किस लिए यूज कर रहे हैं, एज एन एडवर्ब। लेटली, लेटली क्या होता है इस, रिसेंटली। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव नॉट मेट हिम लेटली, कि मैं अभी रिसेंटली उससे नहीं मिला हूँ। नाउ यू हैव टू कम बैक नाउ, नाउ किसके लिए है यहाँ पे, कमिंग बैक के लिए, तो यू हैव टू कम बैक नाउ, नाउ कम बैक नाउ। तो कम बैक क्या है, वर्ब, नाउ क्या हो गया, एडवर्ब। सून, द मूवी विल बिगिन सून, सून किसके लिए है, मूवी के लिए या बिगिनिंग के लिए, कि मूवी अभी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, तो जल्दी ही क्या, शुरू होना। तो बिगिन के लिए, बिगिन इज वर्ब, तो सून क्या हुआ, एडवर्ब। ये जो हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं, यस्टरडे, टुमारो, टुडे। जैसे मैं बोलता हूँ ही केम हेयर यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे किस लिए है, कमिंग हेयर के लिए। आई विल लीव टुमारो, टुमारो किसके लिए है, लीव के लिए, जाने के लिए। तो ये भी एडवर्ब होते हैं, कैसे, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ऑलरेडी, ही इज ऑलरेडी हेयर, या द शो हैज ऑलरेडी बिगन, तो ऑलरेडी किसके लिए यूज हो रहा है, बिगन के लिए, तो बिगन इज वर्ब, तो ऑलरेडी इज एडवर्ब। नेवर, ठीक है, आई विल नेवर डू इट अगेन, तो नेवर किसके लिए है, डूइंग इट अगेन। तो ये होते हैं गाइस एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फिर आते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है गाइस, फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली आपको क्या बताते हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी गाइस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई एक्शन कितनी देर बाद अपने आप को रिपीट करता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं कि कोई एक्शन कितनी देर बाद रिपीट होगा या कितनी देर बाद
दोबारा होगा। तो जैसे ऑलवेज, जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आता है। तो ऑलवेज यहाँ किसके लिए है? कमिंग के लिए। कमिंग क्या है? वर्ब। तो ऑलवेज क्या हुआ? एडवर्ब। वंस, एक बार, जैसे आई हैव मेट हिम वंस, मैं एक बार मिला हूँ उससे। वंस किसके लिए है? मीटिंग के लिए। सेल्डम, आई सेल्डम टॉक टू स्ट्रेंजर्स। सेल्डम क्या होता है? कभी नहीं। तो मैं अजनबियों से कभी बातें नहीं करता। आई यूजुअली गो बाय कैब, मैं यूजुअली कैब से जाता हूँ। तो यूजुअली किसके लिए है? गोइंग के लिए। लेकिन यूजुअली क्या बता रहा है? मतलब ज्यादातर। रेयरली, आई रेयरली विजिट माई विलेज दीज डेज। रेयरली क्या है? अब नहीं हो पाता है इतना। तो ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, रेयरली, ओकेजनली। वी वी मीट आवर फ्रेंड्स ओकेजनली, ओकेजनली मिलते हैं। राइट। रेगुलरली, आई रेगुलरली एक्सरसाइज। ठीक है। फ्रीक्वेंटली, तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंटली भी बनी है। तो आई फ्रीक्वेंटली रीड नॉवेल्स। तो ये क्या बता रहे हैं कि कोई एक्शन कितनी देर बाद अपने आप को रिपीट करता है। दैट्स कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है गाइस आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो आपको जगह बताते हैं, किसी जगह के लिए यूज होते हैं। जैसे हेयर, देयर, जैसे ही इज कमिंग हेयर, आई एम गोइंग देयर। तो ही इज कमिंग हेयर, हेयर किसके लिए? यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या? यहाँ आना, वो यहाँ आ रहा है। तो आना, ठीक है, यहाँ पर। तो जगह के लिए बता रहे हैं, लेकिन कैसे, किसके लिए यूज कर रहे हैं? वर्ब के लिए। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूँ। तो एवरीवेयर, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है। पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर इन द कंट्री। तो इस तरह से। डाउन, गो डाउन द रोड, स्टैंड नियर द डोर, गो अवे या बैक अवे फ्रॉम द व्हीकल, गो बैकवर्ड्स या गो अपवर्ड्स। तो ये जो डायरेक्शन या प्लेस बताते हैं, ये होते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है गाइस, और ये सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे ज़्यादा, मतलब मोस्ट एडवर्ब्स ये होते हैं आपके। ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है? मैनर क्या होता है गाइस? कोई काम करने का तरीका, सलीका। राइट। तो मैनर का मतलब क्या होता है? कोई काम करने का तरीका। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होते हैं? जो आपको कोई काम करने का तरीका बताते हैं कि कोई काम कैसे किया जाता है। जैसे स्लोली, जैसे ही वॉज सिटिंग क्वाइटली, दे वर शाउटिंग लाउडली। क्या बता रहे हैं? वो कैसे चिल्ला रहे थे? जोर जोर से। ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली, केयरलेसली क्या बता रहा है? उसकी ड्राइविंग का तरीका। ठीक है। ही वॉज लुकिंग आफ्टर अस डिलाइटफुली। ठीक है। साउंडली, केयरफुली, केयरलेसली, रूडली, रैशली, हैप्पीली, सैडली, ठीक है, कोल्डली, ये सारे क्या हैं आपके? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है। कंसिस्टेंटली, पेशेंटली, ये सब क्या बता रहा है आपको? कि कोई काम कैसे किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा एडवर्ब्स जो होते हैं वो आपके यही होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जैसे हैप्पी, हैप्पीली। ठीक है। आई विल एक्सेप्ट द ऑफर हैप्पीली। ठीक है। आई लेफ्ट माई होम सैडली। तो ये क्या बता रहे हैं आपको? कोई काम होने का तरीका, कोई काम किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। जैसे ही वॉज लिसनिंग टू मी पेशेंटली या केयरफुली। तो ये क्या बता रहा है? कि वो किस तरह से सुन रहा था मुझे, बड़े ही केयरफुली या बड़े ही पेशेंटली। तो ये होते हैं गाइज आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो ये चार हैं इंपॉर्टेंट, बट अगले दो तीन देख लेते हैं गाइज। एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। अफर्मेशन एंड नेगेशन क्या होता है गाइज? जब आप कोई चीज़ में हाँ या ना बोलते हो कि भाई हाँ ऐसा होगा या ना ऐसा नहीं होगा। जैसे सर्टनली, आई विल कम, आई विल सर्टनली कम। तो सर्टनली क्या दे रहा है उसको? और अफर्मेशन दे रहा है, कंफर्म कर रहा है। ही इज अपेरेंटली लेट, मतलब पता तो लग ही रहा है कि वो लेट हो गया है। ठीक है। आई वी ऑब्वियसली प्ले इन द इवनिंग। सो ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली बात है, अनडाउटेडली ये तो होगा ही होगा। और नो, नॉट, ये जो होते हैं ये नेगेशन वाले होते हैं। तो ये भी हमें समझ आ जाते हैं एलवाई से कि ये एडवर्ब ही है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब गाइस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते थे और रिलेटिव प्रोनाउन होते थे। ऐसे ही इंटेरोगेटिव एडवर्ब है और रिलेटिव एडवर्ब है। ये कब यूज होते हैं इंटेरोगेटिव? जब हम किसी एक्शन के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, वट आर यू डूइंग टुडे, व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हाई आर यू स्लीपिंग नाउ। तो ये हम कोई एक्शन पूछते हैं कि क्या, क्यों कर रहे हो, कैसे, कब कर रहे हो, क्या, कहाँ कर रहे हो। तो ये होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। और इन्हीं को हम रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं, दो नाउन्स के बीच में कंजंक्शन की तरह यूज करने के लिए। जैसे आई क्लियरली रिमेंबर व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, या व्हेन ही के आई वाज स्लीपिंग व्हेन ही केम होम। तो यहाँ किसने कनेक्ट किया दोनों सेंटेंसेस को, दोनों एक्शंस को? व्हेन ने। डू यू रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई वॉलेट?
तो डू यू रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई वॉलेट, ये है interrogative adverb. Why? Do you know why this has happened with me? या डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो ये होते हैं जब सेंटेंस को हम बीच में कनेक्ट करते हैं दो एक्शंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे ही वॉज बॉर्न इन द ईयर व्हेन आई लेफ्ट इंडिया, तो किसने जोड़ा चाहिए? जब मैं इंडिया छोड़ के गया था वो उस साल पैदा हुआ था। सो ये दोनों एक्शंस को कनेक्ट कर दिया किसने? व्हेन ने। तो ये होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो ये है गाइज आपके टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स जो आपको पता होने चाहिए। अब इनमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मैं आज आपको बताऊंगा, मेन जो पॉइंट्स है वो आज आपको बताऊंगा, और बाकी जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहले चीज़ जो आपने याद रखनी है आज के बाद, गाइज ये हम बहुत गलती करते आए हैं इसमें आज तक, अपनी डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए हम एग्जाम में भी गलती कर जाते हैं। ये एडवर्ब्स नोट डाउन कर लेना गाइज। कौन से? ऑलवेज, often, already, just, never, sometimes, frequently, generally, recently, usually, hardly, rarely, normally। अब ये जो एडवर्ब्स होते हैं ना गाइज, एडवर्ब्स को हमने यूजुअली हम कहाँ रखते हैं? वर्ब के बाद। बट ये एक्सेप्शंस हैं, ये मैं 1% करा रहा हूँ आपको, ये वो एक्सेप्शंस हैं जो हमेशा वर्ब से, जो ये वो एडवर्ब्स हैं जो हमेशा वर्ब से पहले यूज करी जाएंगी सेंटेंस में। इनको हम वर्ब के बाद यूज नहीं कर सकते। जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, या ही कम्स लेट ऑलवेज। ही ऑफन कम्स बाय कैब, या ही कम्स बाय कैब ऑफन। अब यहाँ गलती हो जाती है। जैसे अगर मैं ये बोल दूं आई मीट माई फ्रेंड्स ऑफन ऑन द वीकेंड्स, सुनने में ठीक लग रहा है ना? हाँ जी। अगर मैं एग्जांपल बना दूं आई मीट माई फ्रेंड्स ऑफन ऑन द वीकेंड्स। हाँ जी गाइज, अब हमें लग रहा है ठीक है सर, आई मीट माई फ्रेंड्स ऑफन ऑन द वीकेंड्स, लेकिन ये जो ऑफन है ना, ये कभी सेंटेंस में वर्ब के बाद नहीं आ सकता। ये कहाँ आना चाहिए था? आई मीट माई फ्रेंड्स ऑफन ऑन द वीकेंड्स नहीं, आई ऑफन मीट माई फ्रेंड्स ऑन द वीकेंड्स, ये ऐसे बोला जाएगा। समझ आ रही है चीज़? जैसे ऑलरेडी, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड, या द ट्रेन हैज़ अराइव्ड ऑलरेडी। हम तो बोल देते हैं सर, हमें तो पीछे भी लगाने की आदत है, लेकिन ये गलत होता है, याद रखना। आई जस्ट केम बैक होम, या आई केम बैक होम जस्ट। हाँ जी, क्या बोलते हैं? नेवर, आई नेवर लाई टू माई पेरेंट्स, या आई लाई टू माई पेरेंट्स नेवर। आई समटाइम्स गो टू टेम्पल, या आई गो टू टेम्पल समटाइम्स। सर हम तो समटाइम्स एंड में भी लगा देते हैं। आई मीट माई कॉलीग्स फ्रीक्वेंटली, या आई मीट माई फैमिली मेम्बर्स फ्रीक्वेंटली, या आई फ्रीक्वेंटली मीट माई फैमिली मेम्बर्स। वी जनरली remember the the basic laws of nature. Yeah, we generally prepare for competitive exams after our graduation. So we generally prepare, या अगर मैं ऐसे बोल दूँ we prepare for our for competitive examinations generally after our graduation. सुनने में ठीक लग रहा है कि we prepare for competitive exams generally after our graduation, बट ये गलत होगा। क्या होना चाहिए? we prepare, मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ, जैसे we prepare for, मैं सी लिख रहा हूँ बस यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चलो पूरा ही लिख देता हूँ क्या। वी प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जनरली आफ्टर ग्रेजुएटिंग, कि हम ग्रेजुएट होने के बाद हम एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये जो जनरली हमने बाद में यूज कर दिया, दिस वुड बी इनकरेक्ट। क्या होना चाहिए था? ये वी generally prepare, not we prepare generally, we generally prepare, ये क्या होना चाहिए था? we generally prepare for competitive exams after graduating, ये ऐसे होगा। जैसे ये देखना, my brother often comes every Sunday, अगर मैं ऐसे बोलूँ my brother comes every Sunday often, गलत। he usually goes to the movies every Friday, अगर ऐसे मैं अगर ये बोल दूँ he goes to the movies usually every Friday, ये गलत होगा। ठीक है। आई रिसेंटली मेट हिम, या आई मेट हिम रिसेंटली, ये तो पक्का गलत किया होगा गाइस आपने। आई सॉ हिम रिसेंटली, कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले उससे
या कुछ टाइम पहले उसे देखा था, दिस इज रॉन्ग. आई सॉ हिम रिसेंटली नहीं, आई रिसेंटली सॉ हिम. वी यूजुअली, we hardly talk to strangers. We rarely get up. We rarely go to sleep late at night. We normally eat our food before 8 o'clock. तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे गाइस, ये वाले कि ये एक्सेप्शंस हैं, ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जब भी सेंटेंस में यूज होंगे हमेशा वर्ब से पहले यूज किए जाने चाहिए. और फिर इसका काउंटर रूल सुनना. और बाकी जो एडवर्ब्स है ना गाइस, बाकी जो एडवर्ब्स हमने देखे हैं जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं या बाकी जो एडवर्ब्स हैं वो हमेशा वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं. जैसे ही रिटर्न इमीडिएटली या ही इमीडिएटली रिटर्न, हम बोल देते हैं ना ही इमीडिएटली रिटर्न, गलत. ही रिटर्न इमीडिएटली. आई स्लेप्ट या ही स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, ही साउंडली स्लेप्ट या ही स्लेप्ट साउंडली. हाँ जी, ये जो हम नॉर्मली जो हम बोलते हैं ही वॉज शाउटिंग या ही वॉज शाउटिंग रूडली, हम ये नहीं बोल सकते ही वॉज रूडली शाउटिंग. अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, जो मैंने पिछले रूल में आपको बताए सिर्फ वो एडवर्ब्स हैं जो वर्ब से पहले आएंगे, बाकी जो एडवर्ब्स हैं ना वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं. जैसे शी वॉज ब्यूटिफुली डांसिंग या शी वॉज डांसिंग ब्यूटिफुली. हाँ जी, अगर मैं ऐसे बोल दूं ही वॉज फ्लुएंटली, ही वॉज फ्लुएंटली स्पीकिंग फ्रेंच, बोल सकते हैं ही वॉज फ्लुएंटली स्पीकिंग फ्रेंच. चलो अभी ऐसे लिख देता हूँ, ये गलत होगा. क्या होना चाहिए, ही वॉज फ्लुएंटली स्पीकिंग फ्रेंच या ही वॉज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली. तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर और बाकी जो एडवर्ब्स है ना याद रखना वो हमेशा कहाँ यूज किए जाएंगे सेंटेंस में, वर्ब के बाद. तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है. जो मैंने पीछे बताए ये वाले एडवर्ब्स हमेशा वर्ब से पहले, और ये वाले एडवर्ब्स मतलब बाकी सारे एडवर्ब्स हमेशा वो सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज होंगे. क्लियर है चीज. जैसे शी वॉज टॉकिंग रूडली, हम ये नहीं बोल सकते शी वॉज रूडली टॉकिंग टू मी, ठीक है. शी वॉज टॉकिंग टू मी रूडली, तो ये एंड में बाद में यूज किए जाते हैं. सो दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर. और ये मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, बिकॉज नहीं तो फिर आज आपको फिर बहुत थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. चलिए, तो ये था गाइज आज का लेक्चर आपका. दिस इज अबाउट एडवर्ब्स. गाइज प्लीज डू शेयर योर फीडबैक अबाउट दीज लेक्चर्स ऑन आर ईमेल आईडी विच इज hello@edutab.co.in. वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू. और गाइज जाने से पहले फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वी आर ऑफरिंग फ्लैट 81% डिस्काउंट ऑन आर बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स एंड 78% डिस्काउंट ऑन आर other courses. तो कूपन कोड है वन टाइम 81. डू यूज इट फॉर योर प्रेपरेशन. और गाइज ये सेल आज रात को ख़त्म हो जाएगी. 20th अगस्त लास्ट डे है इसका. आज रात को 12 बजे दिस सेल विल बी ओवर. सो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं एनरोल करने की, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस यू कैन गेट फॉर दिस कोर्स. तो क्या करना है आपको, बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है. आपको बस अपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके बस क्या टाइप करना है, edutap EDUTAP edutap.in. जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे. तो एक तो देखो हमारे ये जो सारे कोर्सेज हैं, रेगुलेटरी बॉडी कोर्सेज जैसे RBI हो गया, इन सब पे आपको 78% डिस्काउंट मिल रहा है अपनी टेस्ट सीरीज पे, फुल वीडियो कोर्स पे. और आपको गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स, जिस पे गोल्ड कोर्स में तो और सिल्वर कोर्स में तो अभी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, इनमें भी आपको 78% डिस्काउंट मिल रहा है. और बियॉन्ड दिस you also get you're also getting 81% डिस्काउंट ऑन योर बैंकिंग कोर्सेज. तो बैंकिंग कोर्सेज में भी आपको अपना कोर्स पे 81% डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप ये देखोगे, जैसे बैंकिंग कोर्सेज अगर हम क्लिक करें, मतलब आप क्लिक करोगे शायद कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है. अब यहाँ बैंकिंग कोर्सेज क्लिक करोगे तो यू विल यू विल गेट टू सी कि यहाँ पे हमें बैंकिंग कोर्सेज पे भी सेम, हाँ शायद कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम है गाइस, वहाँ पे भी आपको दिखेगा सेम वन टाइम 81 के साथ आप you can avail 81% discount on these courses. So guys, come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with the second part of this chapter.
ठीक है, एंड वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors on the D-Day. So all the best and happy learning to all of you. Thank you. Bye-bye.